All right. So now I would start with Ria. Ria, please go first and share these three things. Unmute yourself and share. I am grateful for I went to my brother's house. My goal for today is I will study the maths very hard, and I am feeling very excited because it's my first maths class in Okay. Online. Yes. Ria, okay. So Shashwat, go next. Today I don't think anything. You don't think anything. Okay. I will help you. So you know what grateful means, right? Right Yes. now, are you feeling happy about anything? No. No. So imagine the life that you have. You can live, right? You can attend the class. So are you happy about that? That you have life, you can play with your friends, you can do anything you want. Imagine people who do not have life, they can't do anything. But you are able to do all this. So are you happy about being alive? hello. Okay, Shashwat's video has paused. Okay, Shashwat, can you hear me? Okay, Harsh, can you hear me, Harsh? Yes. Yes, Harsh, would you like to share? You can see on the screen. You gotta share one thing you are grateful for, your goal for today, and last is your feelings. So can you share with us? I will grateful for I have a parents and sister and brothers. Okay, very nice. What's your goal? What is your goal for today? Today's my goal is I understand the class and I make some notes and I learn. Very good. And how are you feeling, Harsh? Nice. You're feeling nice? Very good. All right. So it's Amrita and Raj left. Okay, so Amrita, can you keep the camera in middle of you because I can see pura you, but I can only see half Raj. Okay. Now Amrita and Raj, one by one, both of you share these three things. Harsh, you can mute yourself so that आपका background noise नहीं आएगा. I am feeling very happy. Amrita, loudly and come close to the phone when you are saying because we can't hear you. Now Yeah, better. I am feeling happy because today my father did not went to job. He is with us and the phone is also with us. That's why I can join the meeting to the level of very free. And today I eat a special breakfast and I'm grateful for the helpers who help us in our day-to-day life. Okay. And what's your goal and how are you feeling also? I'm feeling excited and my goal is I will try to I will not try. I will next time I will try to keep a big goals. Oh, very good. Nice. I like your goal. Okay. You can take my help if you want help in setting up your big goals. Okay, Raj, go. Today my feeling is I am very happy because I am going to my uh, grandfather's home Hmm. and uh, today my goal is I watched the video and understood that question and answer and the homework is well, well. Okay. So you will get more homework after maths class. All right. Fine. We have Kushnuma left. So Kushnuma, would you share? After you share, we'll start. Okay, one more person has joined. I think that's Abhishek. Kushnuma, go. Share, please. I am grateful for my family. My goal for today is I will
part. I will do max properly. My Hmm. feeling is happy. Wow, very nice. Ekdam short, crisp, you said. Thank you, Krishnama. Okay, who is this 9299270? Please rename yourself or show your face. Abhishek, is that you? Hello? Yes. किसने अभी अभी ज्वाइन किया मीटिंग? क्या अपना प्लीज वीडियो ऑन करोगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन है, या फिर यू कैन से योर नेम. All right, we have someone very shy. Okay, they left also. Okay, no worries. Okay, so if you want, you can mute yourselves. We are starting the class now. Okay. Okay, I think Shaurya has also joined. Okay. Hi. Okay, that's Abhishek. Hi, Abhishek. Can you hear me? Yeah. Abhishek, can you rename yourself? Hi, Shaurya. Shaurya, can you hear me? Shaurya cannot hear me. He needs to. कैसे बताऊं उसे? Yeah, he's connecting to audio. Okay, Shaurya, are you able to hear me now? Let me just quickly call him. Oh. हेलो. हाँ शौर्य, आपको ऑडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा प्लीज. नीचे अगर आप देखोगे ना, लेफ्ट साइड में बॉटम में ऑडियो का कनेक्ट टू ऑडियो बटन होगा, उस पर क्लिक करो. फिर कनेक्ट ओवर कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करो. हेलो हेलो शौर्य, कैन यू हियर मी? ओके सो okay, I'm sorry for the delay everyone. Let's begin now. So please take out your notebook and a pen or a pencil. Start writing, okay? Abhi nahi, when I tell you to write, so then start writing. So today's objective, Harsh, can you read today's objective, please? We will be able to identify internal points, external points, Wait. We will read slowly and we will read correctly. We will be able to identify ke baad what is written. Interior Interior, very good. Interior points, exterior points, and adjacent angle. Very good. Thank you so much, Harsh, for that. Yes. So identify means what? To find. हमें find करना होगा क्या? एक तो interior point को, exterior point को और adjacent angle को. So now these three things जो color में है, these are the new things we are going to learn today. Okay. So let's see. By the end of the class, you should be able to find interior point, exterior point, and adjacent angle. अगर I show you एक image, तो उन तीनों image में you should be able to find it. Okay. All right. So let's recall. So what is an angle? Can someone tell me what's an angle? Who would like to tell me what's an angle? Ria, can you please tell me angle क्या होता है?
angle is made of two lines which connects. Very good. Okay, so one correction. So angle is made of not of line but of ray. ठीक है, line and ray में difference होता है. So है ना, किसी को line और ray में difference पता है? क्या हो रहा है? तेरा फोटो नहीं आ रहा है? तेरी नहीं आ रही है. Shaurya, please mute yourself. Everyone mute yourself. Come on, I don't want to hear background noise. Okay, I will have to mute all. Okay, everyone keep yourself mute, okay? Otherwise, what background noise आएगा? Okay, so if this is a line, but if there is an arrow at the end of the line, it is called ray. This is ray and this is line. This is the difference between ray and line. Line goes extends in both the direction. ये इस side भी जाएगा and इस side भी जाएगा. So there is arrow in both the direction. This is line and in ray you have one end point. So ये left side में इस तरफ नहीं जाएगा. In an angle, so if this is my angle, it is till here only. इस point के beyond नहीं जाएगा. ठीक है? So that is difference between line and ray. So Riya was right. Angle is made up of two rays, not line. Okay, line से नहीं बना होता है, दो rays से बना होता है. And they are connected at one point. And this point is called as vertex. ठीक है? ये जो common point होता है, इस common point का नाम क्या है? Vertex है. ठीक है? और ये जो दो rays होती है, इसको बोलते हैं दो side. These are two sides of the angle. So make this in your notebook. Make this and write this B point is called as vertex, and this are the two sides. Now, in vertex and side के names है. So vertex का नाम है point B. ठीक है, अगर मैं पूछूं वर्टेक्स कौन सा है तो आप बोलोगे वर्टेक्स है पॉइंट बी. एवरीवन म्यूट योरसेल्व्स. ठीक है, और अगर मैं पूछूं साइड्स कौन से हैं तो आप मुझे साइड का नाम बताओगे. देयर आर टू साइड्स, साइड BA एंड साइड BC. ठीक है, तो अगर मैं ये एंगल आपको दिखाऊं और इस एंगल का नाम क्या हुआ? इस एंगल का नाम हुआ, ये एंगल का साइन है. ये दिखा मैंने ये बनाया, ये एंगल का साइन है. इस एंगल का नाम है एंगल ABC. ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था. एंगल को कैसे नेम करते हैं, वर्टेक्स का नाम क्या होता है और दोनों साइड का नाम क्या होता है. So this is our revision. ठीक है, write this down. Make this drawing, make this angle in your notebook and write all this. ठीक है, all of this you need to write. After this, I'm going to take a quiz on angles. So if anyone did not understand, if you have any doubt, please ask me right now. Right after you write, I'm going to ask you questions. So if you didn't understand, ask me. If you're done writing, give me a thumbs up. Okay, Raj and Amrita are done. Okay, so Raj, my question is to you. So I'm making an angle. So I'm making an angle right now, and Raj, you have to answer, okay? So
this is my angle, and this point is A, this point is E, and this point is R. So Raj, my question to you is angle का नाम क्या है? What is the name of this angle? Okay, Khushnuma raised hand. Khushnuma, do you have any question? कि गलती से press हो गया? There is a button where it's showing Khushnuma raised hand. Do you have any question, Khushnuma? I think गलती से हो गया. Okay, No. Raj. Okay, Raj. Yes. Name this angle. जो मैंने अभी भी बनाया है ये वाला. इसका name बताओ. Angle AER. Very good. Beautiful, Raj. You get 2 points for that. Angle AER. So ये वाला जो symbol है ये angle का symbol होता है. ठीक है? Angle AER. Very good. Okay, my next question is to Harsh. Harsh, name the vertex. Vertex का name क्या है? E. Point E. Point. ठीक है? Point E. So vertex का name है point E. Very good. Very good. So point E is my vertex. Okay, next, Khushnuma. Can you please tell me the two sides of the angle? What are the two sides of the angle? Khushnuma, unmute yourself and tell me the two sides of the angle. EAER. EA and ER. Very good. Everyone knows this. Very beautiful, everyone. Side EA, ये एरो ऊपर लगाना इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज ये एरो नहीं है, ये रे है. एंड दूसरा साइड क्या है? मेरा साइड है ER. ठीक है, so this is clear for everyone. Beautiful. Let's move forward. Okay, this question is for Abhishek. So Abhishek, what is this? What is this? आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Abhishek, can you hear me, Abhishek? Where did he go? I think he got kicked out of the meeting. Okay, Shaurya, unmute yourself. And what are you able to see on the screen? Wait, teacher. On your screen, mobile screen पे क्या दिख रहा है? I am looking that samosa and Yes, it's a samosa. Very good, Shaurya. Thank you. mirchi and kari patta. Okay, mirchi and actually it's dhania. So thank you, Shaurya. So now you see this samosa is actually in shape of a triangle and it has 3 angles. Okay? Yes. Okay, so let me name. So this is point A, this is point B, and this is point C. So my next question is to Ambika. Ambika, what is this angle? जो मैंने अभी एंगल पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस एंगल का नेम क्या है? शौर्य, you can mute yourself. Okay. Yeah, Ambika. Ambika, can you hear me? Yes, Ambika, can you hear me? Let me check. Ambika को ऑडियो कनेक्टेड है कि? Yes, कनेक्टेड है. अंबिका, आपको सुनाई आ रहा है? Yeah. ओके, सो आप मेरे को बता सकते हो जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है समोसे के एक वर्टेक्स पे, उस एंगल का नेम क्या है? कैन यू नेम दिस एंगल? B. नो, अभी हमने देखा था. इट्स ओके, कोई बात नहीं. देखो, ये वर्टेक्स बी है. अगर मैं बोलूं तो ये मेरा जो पॉइंट है ना अंबिका, तो इसका नाम बी है और इसको मैं बोलती हूँ वर्टेक्स. ठीक है, ध्यान से सुनना. ठीक है अंबिका, अभी हम सीख रहे हैं तो इट्स ओके, यू कैन डू रॉन्ग आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट ये जो एंगल है, एंगल में 2 साइड होती है और एक वर्टेक्स होता है. जब तक 2 साइड और वर्टेक्स नहीं होंगे तो हमारा एंगल कंप्लीट नहीं होगा. सो इस एंगल का नाम है एंगल ABC.
और मेरा जो वर्टेक्स है ये मेरा हुआ एंगल, और जो मेरा वर्टेक्स है इस एंगल का वर्टेक्स क्या हुआ? पॉइंट बी। ठीक है, ओके रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. रिया, कैन यू टेल मी हाउ मेनी angles are there in this samosa? 3 angles. Very good. Riya, can you name all the 3 angles? A. Yes, Riya, we can't hear you. Acute angles. Okay, they're acute angles, but what are the names of the angle? Acute angle तो type है angle का, ठीक है? Very good, but name क्या है? जैसे इस एंगल का नाम है ABC, है ना? वैसे बाकी दोनों एंगल का नाम क्या है? CBA and BAC. So you said CBA. Riya, angle CBA and ABC तो same ही है. CBA is this angle and ABC is also this angle. वो दोनों तो same है. एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है ना? So what is this? What is the name of this angle? First tell me this. Angle 1 का नाम क्या है? पहले ये बताओ. A, C and D. No. Angle 1 का नाम है BAC. BAC या फिर CAB. कुछ भी बोल सकते हो आप, BAC भी बोल सकते हो और CAB भी बोल सकते हो, दोनों सही है. अब रिया, क्या आप मेरे को एंगल 2 का नाम बता सकते हो? BCA. Very good. And what is the other name of angle 2? ACB. Very good. Very good. Very good. ठीक है. Okay. So angle सबको क्लियर हो गए हैं. I assume किसी को कोई भी डाउट है अभी अनम्यूट करके बोल सकता है, क्योंकि एंगल सबको क्लियर है. अब हमें इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और एडजेसेंट एंगल पे जाना है. वो समझ नहीं आएगा अगर अभी तक कोई डाउट हुआ तो. आई एम गिविंग यू 30 seconds. If you have any doubt, ask me right now. Okay, I'm moving forward. फिर किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay, let me remove this yellow line. Okay, किसी को पता है इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं? Anyone knows what are interior points? Teacher, can I say? Yes, who is that? Please say your name also. I can't see you. Harsh. Yes, Harsh, tell me now. Interior points is that come in an angle. Yes, that come inside the angle. Very good. Take 2 points, Harsh. Beautiful. He's absolutely right. Okay. So ये मेरा एंगल है. इस एंगल का नाम अभिषेक आप बताओ मुझे. अभिषेक. Okay. He can't. इस एंगल का नाम है एंगल XYZ. Correct? Yes. Okay. Now ये जो इस पे 3 पॉइंट्स है. कैन यू सी दिस पॉइंट X, पॉइंट Y एंड पॉइंट Z, है ना? अगर मैं एक पॉइंट इधर बनाऊं, इसका नाम मैं देती हूँ A. ये पॉइंट अगर मैं इधर बनाऊं, इसका नाम देती हूँ B. अगर एक एंगल इधर बनाऊं, इसका नाम दूं D, E. ठीक है? तो मेरे ये सारे मैंने पॉइंट्स बना दिए. So interior points क्या होते हैं? Interior points are points which are inside the angle. So you see this is my angle XYZ. इसके जो अंदर पॉइंट्स है, so ये वाला जो पूरा एरिया है, इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो मेरे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये एंगल के इनसाइड है. इस ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है.
सो जितने अगर मैं यहाँ पे न्यू पॉइंट्स भी बना दूं और इनका नाम कुछ भी दे दूं से G, F, so these are all my interior points. So look at नहीं E नहीं करेंगे, इसका नाम मैं देती हूँ Q. If you see point E and D, they are outside this. ये एंगल के बाहर है, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है. ठीक है? So it's very simple. Interior points are points which are inside the angle. So write in your notebooks. I'm writing here. Interior points are points which are inside the angle. That is between two sides of angle. जो एंगल की टू साइड्स होते हैं उसके बीच में. ठीक है? Done writing? Say yes if you're done writing. Sure, I can see you're not writing. Where's your notebook? सुनने के लिए आए हैं. नोटबुक निकालो, पेन निकालो, मेरे को पूरा नोट्स चाहिए आफ्टर द क्लास. स्टार्ट राइटिंग, कम ऑन. If you're done writing the definition, tell me, okay? I am done. Okay, thank you, Ria. So I'm gonna ask questions now. No, questions I'll tell you ask at the end. So I have to explain two more types of points. One is interior points, which are inside the angle between the two sides. Okay. Now we have exterior point. Okay, before that, interior का मतलब होता है अंदर वाला. ठीक है? अंदर. अंदर. So आप ये भी लिख सकते हो नोटबुक में. इंटीरियर मतलब अंदर. ठीक है? तो हमारे नाम से हमें पता चल जाता है जो पॉइंट्स इनसाइड है, अंदर है. ठीक है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर. बाहर. ठीक है? The points which are outside the angle. So exterior points are points which are outside the angle. So if I make point say E, this is point G, this is point F, this is point A, ये B है. So इतने सारे points है मेरी स्क्रीन पे. कौन कौन से points हो गए? Start writing everyone. जो भी मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, you also have to write. It should be there in your notes. Okay? So write everything. You have to make also diagram. Yeah, you have to make angle. It's not a diagram, it's an angle. अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको कैसे समझेगा? So point कौन कौन से हो गए? A, yes. कौन है? Tell me what happened? So these are my points. है ना? So point A and B मैंने अभी आपको बताया, they are interior points. And angle EGF, क्योंकि ये इस एरिया में नहीं है, ये इस एरिया के बाहर है, एंगल के बाहर है, they are outside the angle. So इस पूरे एरिया में जो भी होंगे, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये वाले एरिया में जितने भी पॉइंट्स है उनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स. ठीक है? सो EGF मेरे हो गए एक्सटीरियर पॉइंट्स. इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये इनसाइड है. ये आउटसाइड है.
ऑल राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शौर्य एंड अभिषेक, अगर ये क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप. नॉट क्लियर? शौर्य अनम्यूट करो और मेरे को बताओ क्या डाउट है एग्जैक्टली, क्या नहीं समझा. थैंक यू खुशनुमा. यस शौर्य, अनम्यूट करके बोलो क्या नहीं समझा. ठीक है, मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ. मेरा ये एंगल है, एंगल का नाम है XYZ. ठीक है, इस एंगल के अंदर, अंदर वाला एरिया कौन सा हुआ? ये वाला एरिया. सो ये जो भी ऑरेंज एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया एंगल के इनसाइड है, अंदर है. ये घर, सपोज अगर ये मेरा घर है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं बना रही हूँ ये सारे घर के अंदर है, इंटीरियर में है. एंड ये जो मैं क्रॉस बना रही हूँ ये घर के बाहर है, ये एक्सटीरियर में है. तो एक्सटीरियर और इंटीरियर समझा? एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जो ऑरेंज ऑरेंज से मैंने मार्क किया है, ये अंदर है एंगल के. और इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स है इंटीरियर पॉइंट्स, जो अंदर है. ठीक है, और इस एंगल के जो भी बाहर पॉइंट्स है, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ. ये वाला जो एरिया है पूरा, ये एरिया एंगल के बाहर है. एंड इधर जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स है. एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, जो एंगल के बाहर पॉइंट्स है. अब समझा शौर्य? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमें आज का ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें आइडेंटिफाई करना था इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड एडजेसेंट एंगल. सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हो गया. ओके, अमृता एंड राज has raised their hand. What happened? Do you guys have any question? Unmute yourself, guys. Yes, Amrita, tell. If anyone asks us, like he draw like this, and he said what is the name of the angle, then we will say acute angle, or we will say angle XY. Okay, very good, very, very nice question. So, if they ask you what is the name of the angle, अगर वो आपसे name पूछ रहे हैं, the name is XYZ. ठीक है? If they are asking what is the type of angle, अगर वो आपसे type पूछ रहे हैं, TYPE, if they are asking you type, what is the type of angle, then you will say it is, this one is obtuse angle. है ना? ये acute नहीं है, ये obtuse है, because it is more than 90 degree. समझा? अगर नेम पूछेंगे तो आप बोलोगे XYZ, अगर टाइप आपसे पूछे तो आप बोलोगे obtuse. क्लियर? इट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपके घर पे कोई डॉग है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से टाइप का एनिमल है, तो आप बोलोगे डॉग. बट मैं अगर आपसे उसका नाम पूछूं तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक बॉक्सर या जो भी आपने उसको नाम दिया है. ठीक है, इट इज लाइक दैट. गॉट इट? ओके, can we move forward? Show me thumbs up if we can move forward. All right, let's go. Thank you Ambika, Harsh, Amrita, Raj, Shashwat. Okay, now this is very easy. So thank you Ria. What are the points on the arms of the angle? नाम से ही पता चल रहा है जो पॉइंट्स एंगल के आर्म्स पे है. आर्म्स का दूसरा नाम क्या हुआ? साइड्स. या तो एंगल के आर्म्स बोल सकते हो, ये मेरा आर्म है, वैसे ही ये एंगल के भी टू आर्म्स हो सकते हैं. एक तो XY हो गया, एक YZ हो गया. ठीक है, इन आर्म्स को मैं साइड्स भी बोल सकती हूँ. सो जो भी पॉइंट्स इस एंगल के ऊपर होते हैं वो वाले एंगल्स पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल हो गए. सो यहाँ पे क्या कौन कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट X, Y एंड Z. ये तीनों पॉइंट्स एंगल के ऊपर है
एंगल के साइड के ऊपर है या फिर एंगल के आर्म के ऊपर है, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल हो गए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में भी अगर मैं देखूं, मैंने ए बी को बोला था इंटीरियर पॉइंट्स, EGF को बोला था एक्सटीरियर पॉइंट्स, और मेरे XYZ कौन से पॉइंट्स हो गए थे? पॉइंट्स ऑन दी आर्म्स, या फिर आर्म्स को और क्या बोल सकती हूँ मैं? साइड्स ऑफ द एंगल। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स एंगल के अंदर, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंगल के बाहर, एंड जो पॉइंट्स एंगल के ऊपर ही है उसको बोलेंगे पॉइंट्स जो एंगल के ऊपर है, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल या फिर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ द एंगल। इज दिस क्लियर एवरीवन? गिव मी अ थम्स अप। ओके, थैंक यू शाश्वत। खुशनुमा, thank you so much. All right, thank you Harsh. We'll move forward now. Now we are coming to the last point of today, which is adjacent angle. ठीक है, adjacent angle. अब adjacent angle क्या होता है? This is the definition. Adjacent angles are two angles. Two angles. Now look at all the important words. Adjacent angles are two angles with a common vertex. Common vertex and a common side with no interior common points. Now, all these points are very important, okay? All these points are very important when we consider angles. Everyone, can you all mute yourselves? There's a lot of background noise. When I ask you to speak, then unmute, okay? So, adjacent angles में मेरे पास two angles होने चाहिए, उनमें एक common vertex होता है and a common side with no interior common points are called adjacent angles. Okay, one by one I will explain. So let's see this. Okay, this diagram. Here there are two angles. So what are the two angles that I have here? Angle A, B, D, और मेरा दूसरा एंगल कौन सा हो गया? एंगल D, B, C. So this is angle 1 and this is angle 2. ये मेरे two angles हो गए. Now common vertex. What is my vertex? Vertex is B. और ये दोनों एंगल में कॉमन है. ठीक है, दोनों एंगल में सेम है, कॉमन है. ओके, सो माय वर्टेक्स इज, सॉरी, कॉमन वर्टेक्स वुड बी पॉइंट बी. ठीक है, एंड व्हाट विल बी माय कॉमन साइड? कॉमन साइड, दोनों एंगल में कौन सी साइड कॉमन है, सेम है? साइड BD. ठीक है, अंबिका, are you paying attention? And why are you on unmute? Please mute yourselves and pay attention. Okay, we're not gonna talk while attending the class. Okay, इतना क्लियर हुआ? So we have two angles. इनमें कॉमन वर्टेक्स हुआ पॉइंट B एंड कॉमन साइड हुआ BD. कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम है. एंड इनमें, इन दोनों ही एंगल्स में देयर इज नो इंटीरियर कॉमन पॉइंट्स. इनका जो इंटीरियर पॉइंट्स अभी वी स्टडीड हियर, राइट? सो वी स्टडीड इंटीरियर पॉइंट्स हियर. So if I make points, so this can be X, Y, Z, E. तो जो भी इस एंगल के, जो एंगल ABD के जो इंटीरियर पॉइंट्स है और एंगल DBC के जो इंटीरियर पॉइंट्स है, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होती है, फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए,
सेकंड कंडीशन एक कॉमन साइड होनी चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन इज नो इंटीरियर कॉमन पॉइंट्स, कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस मेरी मीट हो रही है, then we will say these two angles are adjacent angles. ठीक है? Now, Raj and Amrita, do you have any doubt? Didi, Yes. I don't understand this Adjacent. Adjacent angle. Okay. Adjacent angle में अगर मैं एंगल आपको समझा था अभी तक, okay. Amrita and Raj, if you can hear me, okay, समझा था, ठीक है? Okay, okay. So, angle and adjacent angle हमेशा two angles होते हैं, दो angles जो side by side है. So this is one hand, so and this is second hand. If I keep them side by side, I will call them they are adjacent. Right now my hands are in adjacent. Adjacent मतलब होता है अगल बगल. आपका घर और आपके जो नेबर का घर है वो adjacent है. Adjacent मतलब जो एक कॉमन वॉल शेयर करते हो आपका घर और आपके नेबर का, जो आपके जिस बगल वाले नेबर है उनमें कॉमन दीवार है बीच में, है ना? तो जब भी एक कॉमन दीवार या कॉमन साइड होती है उस तो वो दोनों को हम एडजेसेंट बोल सकते हैं. सो इन एंगल हमारे पास थ्री कंडीशंस होती है. इफ दीज थ्री कंडीशंस सैटिस्फाई हो जाएंगी, तीनों कंडीशंस मीट करेंगी, तो हम बोलेंगे कोई भी दो एंगल एडजेसेंट है. ठीक है? कंडीशन नंबर 1, उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. दोनों एंगल में वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है? सेकंड कंडीशन, एक कोई भी साइड कॉमन होनी चाहिए, दोनों की साइड्स एक सेम होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, उनमें कोई भी इंटीरियर जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, so see, so I'm making an angle here. So let me call this angle 1. This is angle 2. ठीक है? Now in angle 1 and 2, क्या मेरा वर्टेक्स सेम है? इसको मैं बोलती हूँ A, इसको मैं बोलती हूँ D. क्या इन दोनों में वर्टेक्स सेम है? नो, राइट? नहीं है सेम. तो क्या ये दोनों एडजेसेंट हुए? नहीं हुए, क्योंकि इन दोनों में वर्टेक्स सेम नहीं है. क्या इन दोनों में कोई साइड है जो सेम है? ये साइड हो गई A, B, इसको मैं बोलती हूँ C, इसको मैं बोलती हूँ D, E, F. ठीक है? क्या इन दोनों में कोई साइड सेम है? Yes. कौन सी साइड सेम दिख रही है? B and D? No. Which side do you think is same? Upper side. There is no side. So इस वाले एंगल की कौन कौन सी साइड है? लेट्स सी. ठीक है? इस वाले एंगल में मेरे पास साइड है AC एंड AB. इस वाले एंगल में साइड है DE एंड DF. सेम कौन सी हुई? सारे साइड्स के नेम ही अलग है, सेम कैसे हो गए? कौन सी? How are they same? They're not same, right? Yes. Yes. They're different. है ना? थर्ड, अगर मैं इंटीरियर पॉइंट्स बनाऊं तो इस एंगल का इंटीरियर क्या हुआ? ये वाला एरिया हुआ, यहाँ पे मैं बना सकती हूँ. और इस एंगल में इंटीरियर पॉइंट्स क्या हुए? ये वाले हुए. या ये दोनों सेम है? इंटीरियर पॉइंट्स दोनों एंगल के सेम है? टेल मी. नहीं है ना? ये वाला इस एंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स जो इधर होंगे वो होंगे, इधर होंगे जो इधर होंगे. तो ये सेम कैसे हुए? ये दोनों एंगल्स अलग अलग जगह बनाए हैं मैंने. अगर अलग अलग जगह बनाए हैं तो उसके अंदर का एरिया सेम कैसे हुआ? सपोज ये मेरा एक
स्क्वायर है, ठीक है। एक एंगल मैं इधर बना रही हूँ, एक एंगल मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है। सो इन दोनों के एरिया कौन सा हुआ? एक एरिया ये वाला हो गया, एक एरिया ये वाला हो गया। तो ये क्या दोनों का एरिया सेम है? एक ही जगह पे बनाया मैंने दोनों। हैव आई मेड देम इन द सेम प्लेस? नो राइट, डिफरेंट प्लेस पे है ना। तो अगर वो डिफरेंट प्लेस पे है तो जो मैं पॉइंट इधर बनाऊंगी और जो मैं पॉइंट इधर बनाऊंगी, क्या वो सेम होंगे? नहीं, वो अलग होंगे। अब देखो, मैं एक एंगल बनाती हूँ, एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बना दिया। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, I would not listen. who is that? Please say your name. I can't understand. Like, who was that? किसने बोला? Tell your name ना। ओके, एनीवे, सो अगर अब मैं इधर देखूं, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट मेरे एंगल डी ए बी में है, पर सी ए बी में नहीं है। समझा? ओके, आई एम मेकिंग इट अगेन, ठीक है। सॉरी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये क्लियर हो गया? अब मेरे टू एंगल्स कौन कौन से, लेट्स सी। एक एंगल हो गया ए बी डी, एक ए बी डी। एक दूसरा एंगल कौन सा हो गया? ए बी सी। तीसरा एंगल कौन सा हो गया? सी बी डी। ये सबको समझ आए? ये तीनों एंगल सबको समझ आ गए? Yes. ठीक है। अब अगर मैं एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कौन सा वाला हुआ? ये बड़ा वाला एंगल हो गया, ठीक है। एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये छोटा वाला एंगल हो गया। एंगल सी बी डी, सी बी डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एंगल ए बी डी को मैंने 1 से मार्क किया है, एंगल ए बी सी को मैंने 2 से मार्क किया है, एंगल सी बी डी को मैंने 3 से मार्क किया है, जिससे आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में। इतना समझा? ठीक है। अब ईच एंगल के लिए हम चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। लेट्स से वर्टेक्स, एंगल ए बी डी का वर्टेक्स क्या है? हु विल टेल मी? सो आई वांट हर्ष टू टेल मी। हर्ष, मेरे को बताओ, एंगल ए बी डी का वर्टेक्स क्या है? बी। वेरी गुड, पॉइंट बी। ओके, खुशनुमा, टेल मी एंगल ए बी सी का वर्टेक्स क्या है? एंगल ए बी सी का वर्टेक्स क्या है? बी, पॉइंट बी। वेरी गुड, पॉइंट बी।
ओके लास्ट शौर्य, टेल मी एंगल CBD का वर्टेक्स क्या है? अनम्यूट करो अपने आप को। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है जहां पे टू रेज मीट करते हैं, यहाँ पे दो रेज आके मिलते हैं, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना? तो वर्टेक्स क्या है? एंगल CBD का। कौन सा एंगल CBD? CBD। तो एंगल CBD का वर्टेक्स कौन सा है? कौन से कॉमन पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल रहे हैं? अनम्यूट, अनम्यूट करो, आपको सुनाई नहीं आ रहा है मुझे आप जो बोल रहे हो। ओके, कैन समवन एल्स टेल मी? कैन समवन एल्स अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? Yes, Anyone? I. हाँ Yes. बताओ। B. Point B. वेरी गुड, पॉइंट B। वेरी गुड। उप्स, कहाँ चला गया? हाँ, वेरी गुड, वर्टेक्स सबको क्लियर हो गया। अब लेट्स राइट साइड्स। एंगल ABD, ABD। ओके अमृता, क्विकली ABD की साइड्स बताओ। ABD. A and D. Side AD. साइड AD, AD तो कोई साइड ही नहीं है। ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, यहाँ पे कोई साइड दिख रही है आपको? ये दोनों ज्वाइन ही नहीं है। अगर ये दोनों ज्वाइंट नहीं है तो ये साइड कैसे हुई? कोई राज, कोई बताना नहीं है, बता के आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं शौर्य वेट। हाँ देखो, साइड का नाम कैसे होगा? एक ABD, ये ABD है, तो साइड कौन सी हो गई? एक तो AB हो गई, दूसरी हो गई BD। यहाँ पे कोई ये दोनों जुड़े हुए ही नहीं है, A और D पॉइंट जुड़े हुए हैं नहीं है ना, तो वो साइड नहीं होगी। तो एक साइड हुई AB और दूसरी साइड हुई BD। शौर्य, शौर्य स्टॉप टॉकिंग, यू टेल मी नाउ एंगल ABC की साइड्स बताओ। एंगल ABC, सेकेंड एंगल ABC, साइड्स बताओ कौन कौन सी है इस एंगल की साइड? कौन सी? CB and E AB. तो है ही नहीं, देयर इज E तो दिख ही नहीं रहा मुझे। AB हाँ AB, वेरी गुड। दूसरी साइड कौन सी है? और CC. CD कैसे हो सकती है? ये C पॉइंट है, ये DC, ओ सॉरी BC, थैंक यू, वेरी गुड, BC, वेरी गुड शौर्य, गुड। एंगल CBD की साइड्स कौन बताएगा? किसने नहीं बात की अभी तक? I. ओके टेल मी हु इज आई? ओके राज, टेल मी। CB. CB, ओके वेरी गुड, CB And BD. and BD, वेरी गुड। एक ट्रिक बताऊं? ये देखो AB, एंगल के नाम में ही साइड्स है, AB, देन दूसरा BD। इधर देखो, एंगल देखो AB, इधर AB, ये BC, ये BC, ये ट्रिक हो गया, दिख रहा है? एंगल के नेम से ही आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो एंगल CBD में ये CB है और यहाँ पे हमने CB लिखा है, ये BD है, हमने यहाँ पे BD लिखा है। या दिस इज अ ट्रिक, शॉर्टकट मेथड। अगर एंगल का नाम आपने सही से लिखा है तो आप इसका साइड बता सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको? Yes. ओके Yes. नाउ मेरे जो तीन, अब एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है? एडजेसेंट एंगल में तीन कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, उनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। व्हेन आई से कॉमन मतलब क्या? अमृता एंड राज, आप में कॉमन चीज क्या है? आप दोनों ह्यूमंस हो,
ठीक है। और आप में कॉमन चीज क्या हो सकती है, आप दोनों सेम घर में रहते हो, आप सेम फैमिली को बिलोंग करते हो, तो कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब हमें दो एंगल है उनके, कोई भी अगर कोई मैं बोलूं कोई एंगल्स एडजेसेंट है, इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि वो सेम होना चाहिए। अब एंगल, जितने भी तीनों एंगल्स है यहाँ पे, उन तीनों में वर्टेक्स सारे पॉइंट भी है, तो तीनों के वर्टेक्स कॉमन है। ये समझा सबको? एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। फर्स्ट इज उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों एंगल का वर्टेक्स सेम है। अगर मैं एक और एंगल बनाऊं, ये मैं बोलूं x, ये मैं बोलूं y, ये मैं बोलूं z, एंगल x y z, इसका वर्टेक्स हुआ पॉइंट x, सॉरी पॉइंट y हो गया ना, एंड इसकी साइड्स हो गई साइड एक्स वाई एंड साइड वाई जेड। अब क्या मेरा एंगल सीबीडी और क्या एंगल एक्स वाई जेड में वर्टेक्स कॉमन है? नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स है पॉइंट बी और इसका वर्टेक्स है पॉइंट वाई, तो वो सेम नहीं है। ये समझ आया सबको? इन दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यानी कि उन दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है। इज दिस क्लियर? अगर ये बात, सॉरी, अगर ये बात सबको क्लियर हुई है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अमृता, राज, रिया को क्लियर है, खुशनुमा को क्लियर है, हर्ष, अभिषेक, श्योर है आपको क्लियर है? अगर क्वेश्चन तो पूछ लो मुझसे अभी। हर्ष को क्लियर है? ठीक है, इसका वर्टेक्स है मेरा बी पॉइंट, इसका पॉइंट वाई है, तो इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो क्या ये दोनों एंगल कभी भी एडजेसेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। बट ये जो तीनों एंगल है, क्या ये इन तीनों के वर्टेक्स सेम है, पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट बी, तो क्या ये एडजेसेंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बट पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट होने के लिए दो और कंडीशन है जो सच होनी पड़ेगी, अगर दो कंडीशन और सच होगी तभी ये एडजेसेंट होंगे। लेट्स लुक एट द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्लियर कि वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स लुक एट द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वन कॉमन साइड, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, कॉमन मतलब सेम होनी चाहिए दोनों एंगल की, ठीक है। लेट्स सी, ए बी डी और ए बी सी में देखते हैं। ए बी डी, ए बी डी की कौन सी साइड थी? ए बी थी और बी डी थी, ए बी थी और बी डी थी। ए बी सी, ए बी सी में मेरी साइड्स कौन सी? एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, तो कोई कॉमन साइड है? कोई साइड है जो दोनों की सेम हो? देखो लिखा हुआ है, हमने सारे नेम्स ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेरे को शाश्वत आप बताओ। शाश्वत, आर यू देयर? मेरे को बताओ कॉमन साइड कौन सी है एंगल एबीडी में और एबीसी में? सेम साइड कौन सी है? ए बी। ए बी, वेरी गुड। देखो ए बी, वेरी गुड। ओके, क्या एंगल ए बी सी और सीबीडी में कोई साइड कॉमन है? कौन बताएगा? खुशनुमा आप बताओ, आपने बहुत देर से नहीं बोला है। एंगल ए बी सी और एंगल सीबीडी, एंगल ए बी सी और एंगल सीबीडी में कोई साइड कॉमन है? खुशनुमा आप हो वहां पे? ओके, सो रिया,
Riya, can you hear me? Yes. Yes, tell me एंगल ABC, ये एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है, एंड दूसरा एंगल CBD, CBD, क्या इन दोनों में कोई साइड कॉमन है? B and C. यस, ये वाली जो साइड, बीच वाली जो साइड है, ये वाली कॉमन है। इसमें हमने लिखा है BC, इसमें हमने लिखा है CB, बट है तो सेम ही, यही वाली साइड है ना दोनों की। ये ABC है, उसमें भी ये साइड है, ये CBD है, इसमें भी ये साइड है, दोनों में ये साइड कॉमन है, सेम है दोनों की ये साइड। करेक्ट। नाउ टेल मी एंगल CBD, कौन सा एंगल? ये CBD और एंगल XYZ, अमृता कोई साइड कॉमन है? जो एंगल CBD है, ये वाला थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल XYZ, इन दोनों में कोई साइड कॉमन है? नो, वेरी गुड, कोई साइड दिख ही नहीं रही है। ये यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, कैसे सेम हो सकती है ही नहीं, ऑब्वियसली सेम नहीं है। सेम साइड होने के लिए साथ में बने होने चाहिए ना, अगर साथ में एंगल नहीं बना है तो साइड सेम नहीं है, सिंपल। ठीक है, सो एडजस्ट, क्या ये दोनों एंगल्स कभी भी एडजस्टेंट हो सकते हैं? CBD एंड XYZ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन दोनों में कोई भी साइड कॉमन नहीं है ना। अगर साइड कॉमन होगी तो ही वो एडजस्टेंट होंगे, अगर साइड कॉमन नहीं है तो एडजस्टेंट नहीं है। बट एंगल ABC और एंगल CBD देखो, उसमें ये वाली साइड दोनों में सेम है, कॉमन है, तो ये दोनों क्या एडजस्टेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एंगल ABD और ABC में देखो, ये वाली साइड AB साइड दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, तो क्या ये दोनों एंगल एडजस्टेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि एक साइड कॉमन है। ठीक है, बट अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, एंगल ABD, ABD, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये एंगल, और CBD, क्या इन दोनों में कोई साइड कॉमन है? एंगल ABD, ये वाला एंगल जिसपे मैं स्टार बना रही हूँ, इन दोनों में क्या कोई साइड कॉमन है? शौर्य आप बताओ, जिन एंगल के ऊपर मैंने स्टार बनाए हैं उनमें क्या कोई साइड कॉमन है? No. Yes. कोई साइड कॉमन नहीं है शौर्य। ये BD लिखा है, दोनों में BD लिखा है, ये BD सेम अगर लिखा है तो ये कॉमन नहीं हो गई? B and D. BD एंड नहीं, BD, तो BD साइड कॉमन है, तो इस वजह से ये दोनों भी एडजेसेंट हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग एडजेसेंट है, अमृता लुक हियर, आई एम नॉट सेइंग एडजेसेंट है, मैं कह रही हूँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक थर्ड कंडीशन भी है। कंडीशन नंबर 1, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, कॉमन साइड होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3, उनके जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो सेम नहीं होने चाहिए। थर्ड, एवरीवन म्यूट योरसेल्व्स, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नो, I have question. This chapter. यस, किसको क्वेश्चन है? Who has a question? Someone said they have a question. When meat is over, tell time here that. कौन? शौर्य बोल रहा है। शौर्य अपना वीडियो बंद करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है उसकी आवाज क्लियर नहीं है। Shorya, are you saying anything? No. Then I'm muting you. Don't unmute. So third condition क्या है एडजेसेंट एंगल होने की? थर्ड कंडीशन है कि उसमें कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेट मी मेक सम पॉइंट्स, ठीक है? पॉइंट E, पॉइंट Z, पॉइंट G, पॉइंट F, पॉइंट K, पॉइंट M, ठीक है? अब मैंने ये सारे पॉइंट्स बना दिए रेड वाले।
अब शाश्वत, एंगल एबीसी के इंटीरियर पॉइंट्स बताओ कौन से हैं? पॉइंट Z, पॉइंट G, पॉइंट F। दोबारा बोलो, एबीसी के इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट E, हाँ, पॉइंट Z, वेरी गुड। सीबीडी के? पॉइंट G, सीबीडी पॉइंट जी, पॉइंट F। वेरी गुड। एक्स वाई जेड के? एक्स वाई जेड के कौन से इंटीरियर पॉइंट्स है? दिख रहा है कोई पॉइंट वहां पे? नो। हाँ, तो है ही नहीं ना। मैंने बनाए नहीं। चलो अब बना देती हूँ। क्या नाम दूं? एस दे दूं? शाश्वत का एस। अब को इंटीरियर पॉइंट कौन सा है? पॉइंट S। एबीडी का? एबीडी में इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं? एबीडी बड़ा वाला एंगल। E, Z, G, F। वेरी गुड। अब थर्ड इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से समझ गए? एम और के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है क्योंकि वो एंगल के बाहर है, वो एक्सटीरियर पॉइंट है। हमें एक्सटीरियर पॉइंट से मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, कोई भी दो एंगल एडजेसेंट तभी होंगे जब उन दोनों में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं होना चाहिए। साइड एंड वर्टेक्स होना चाहिए सेम, बट इंटीरियर पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। अमृता बोर लग रही है, अमृता आंसर दो। मेरे को बताओ, एबीडी और एंगल एबीसी में कोई भी पॉइंट कॉमन है, इंटीरियर पॉइंट? अनम्यूट करो। ये वाला एंगल जिसपे मैं रेड डॉट बना रही हूँ, इन दोनों में कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन है? इंटीरियर पॉइंट हाँ, है कॉमन, सेम है दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स। एंगल एबीडी जो बड़ा वाला एंगल है और एंगल जो एबीसी है, इन दोनों में इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन है? नो। नहीं। तो ये इजी क्या हो गया? यहाँ पे भी इजी लिखा है, इजेड, इधर भी इजेड है। ये जो दोनों पॉइंट है ई और जेड वाले, ये एंगल ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है नहीं दोनों में? ये बड़ा वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है? दोनों एंगल में ये दोनों पॉइंट है ना? दिख रहे हैं कि नहीं? ये बड़े वाले एंगल में भी ये दोनों पॉइंट है और ये जो छोटा वाला एंगल है इसमें भी ये दोनों पॉइंट है कि नहीं? दिख रहे हैं? यस। तो ये दोनों एंगल के ये दोनों पॉइंट सेम हो गए ना, कॉमन हो गए। यस। तो एडजेसेंट एंगल में तो कॉमन नहीं होने चाहिए थे, तो क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है? नो। बताओ। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में ये दोनों पॉइंट सेम हो गए और एडजेसेंट एंगल में पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए थे। समझा? दोनों में सेम हो गए पॉइंट्स, बट पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स सेम नहीं होने चाहिए। नो लिखा है यहाँ पे, नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। लेट्स कंसिडर एंगल एबीसी एंड सीबीडी। दूसरा कलर ले लेती हूँ सो दैट इट्स इजी। ये वाला एंगल पिंक वाला, ठीक है, और ये वाला एंगल ए बी सी एंड सी बी डी, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल की बात हो रही है। खुशनुमा, आर यू स्टिल देयर विथ अस? खुशनुमा अनम्यूट करो। यस। ओके, सो एंगल एबीसी और एंगल सीबीडी में क्या कोई इंटीरियर पॉइंट्स है कॉमन? नहीं है। इसके इंटीरियर पॉइंट्स ये वाले हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स ये वाले हैं, दोनों में सेम हो ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं?
इन एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं है। अगर नहीं है तो एंगल एडजेसेंट है, समझा? अगर कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है तो एडजेसेंट, तो जो दो एंगल है मेरे वो एडजेसेंट होंगे। तो इन एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी में क्या कोई भी दो पॉइंट कॉमन है? हाँ खुशनुमा? नो नो ना? अगर नहीं है कॉमन तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे, दे विल बी एडजेसेंट, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। और एक्स वाई जेड की तो मैं बात ही नहीं करूंगी। क्यों बात नहीं करूंगी? क्योंकि वो तो वैसे भी एकदम अलग है, उसमें कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है, कॉमन साइड भी नहीं है और पॉइंट सेम नहीं है, बट कोई वर्टेक्स एंड साइड भी हम काउंट करते हैं। समझा ये सबको? तो मेरे एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मेरे एडजेसेंट है। Is this clear to everyone? Give me thumbs up if this is clear. So 3 conditions meet होनी चाहिए। कंडीशन 1, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? बी। एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो कौन सी कॉमन साइड है दोनों की? BC, ये वाली साइड। तो कॉमन साइड भी है। नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, कोई इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स Z और E है और इसके सॉरी इसके ZE थे, इसके GF थे। अगर मैं कहीं और भी इंटीरियर पॉइंट्स बना दूं तो भी वो कॉमन नहीं होंगे। तो थर्ड कंडीशन भी मीट हो गई। तो इस वजह से एंगल ABC और एंगल CBD मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर? सबने लिख लिया ये सब? ओके, वेरी गुड। नाउ आई हैव वेरी let's go back to the slide. Share. Okay, now I have few questions. It's a quiz time now. अब concept सब समझ गया है। So I will ask from Harsh. Harsh, unmute yourself. Harsh, can you hear me? Yes. Question लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। Are angle ABC and CDE adjacent? टीचर कैन यू टेल क्वेश्चन अगेन? लिखा है, देखो स्क्रीन पे, आप पढ़ भी सकते हो। आर एंगल ABC, कौन सा एंगल? ABC, ये वाला एंगल, एंड एंगल CDE, कौन सा वाला? ये वाला CDE, ये वाले एंगल, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है? नो नो। व्हाई नो? बिकॉज द बोथ हैव सेम साइड्स। सेम साइड है तो फिर एडजेसेंट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है हर्ष? कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, पढ़ सकते हो और कॉमन बताओ। वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है? यस, कॉमन है। वर्टेक्स ABC। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जहाँ पे दो साइड मीट करे। एंगल ABC, एंगल CDE। एंगल ABC का वर्टेक्स क्या है? एंगल ABC, इसका वर्टेक्स क्या है? B। पॉइंट B। B। एंगल CDE का वर्टेक्स क्या है? CDE। E। हाँ, B। D। तो क्या ये दोनों सेम पॉइंट है? B, ये तो पॉइंट B है, ये पॉइंट D है। एक पॉइंट इधर है बना है, एक पॉइंट इधर है। क्या ये दोनों सेम कैसे हो गए? तो अलग अलग है ना? यस। तो अगर
सेम नहीं है तो क्या ये दोनों एडजेसेंट होंगे? नहीं। नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के वर्टेक्स अलग अलग है। और एडजेसेंट एंगल होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर तो वर्टेक्स कॉमन है ही नहीं, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। इसका आंसर है नो, बिकॉज वर्टेक्स इज नॉट सेम। Yes. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Yes, Shaurya, you raised your hand. Do you have any question? Do you have any question, Shaurya? You raised your hand. No, there's a button to raise hand. So अगर आप वो प्रेस करोगे स्क्रीन में तो मेरे को लगेगा. Next. Okay, who will tell me this question? किसको आंसर करना है? Who's brave person who's volunteering to answer this one? Okay, Shashwat, you go. Shashwat. Shashwat has left the meeting. Okay, Riya. Riya. Yes. Let's They see. are Our angle ABC. ABC. ये वाला एंगल और एंगल DBE. कौन सा है D? DBE. ये वाला. क्या ये दोनों एडजेसेंट है? yes. Yes. Okay. What is the first condition for them being adjacent? First condition क्या होती है? यहाँ लिखा है. Common vertex. Common vertex. Common vertex. जा रहा है आवाज. Okay. So in angle ABC और एंगल DBE, अगर इन दोनों को मैं देखूं तो इन दोनों का वर्टेक्स, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन? अच्छा, ABC का वर्टेक्स कौन सा है? रिया, आपसे ही बात कर रही हूँ मैं अभी. रिया, Riya, can you hear me? Hello. Hello. तो Yes, Riya. ABC का वर्टेक्स कौन सा है? point B. Point B. Very good. और DBE का? Point B. Very good. तो फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई. सेकंड कंडीशन क्या है? एक कॉमन साइड होनी चाहिए, है ना? Yes. ओके. ABC की साइड्स बोलो जल्दी जल्दी. A, B and B, C. ओके. DBE की? D, B and B, E. वेरी गुड. कौन सी साइड कॉमन है? कोई साइड है जो कॉमन है? नहीं है. तो क्या कंडीशन मीट हुई? क्या कॉमन साइड थी? नहीं थी. तो क्या ये दोनों एडजेसेंट होंगे? No. नहीं होंगे. सो अगेन दीज टू आर नॉट एडजेसेंट. क्यों नहीं है एडजेसेंट? क्योंकि इन दोनों में कोई भी साइड कॉमन नहीं है. अगर देखो कोई कॉमन साइड होगी तो आपको दिख जाएगी. इसमें हमें दिख रहा है कि कोई साइड कॉमन है ही नहीं. अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात करती, अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात करती तो इसमें मेरे को दिख रहा था साफ साफ कि जो BC साइड है ये दोनों की सेम है. बट एंगल जो ग्रीन वाले एंगल है उनमें कोई साइड मेरे को दिख रहा है सेम है ही नहीं. तो अगर साइड सेम नहीं है तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड. आर अभी कौन बताएगा मुझे? सबने कौन बच गया? सो आई वांट नाउ Raj to tell me. Raj? Okay, Yes. Raj. Question 3. Are angle ABC and angle ABE adjacent? ABC.
रुक जाओ, मेरे को कलर चेंज करने दो। हाँ, एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है, और एंगल ABE, ये बड़ा वाला एंगल, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? सॉरी, क्यों नहीं हो रहा ये? मीटिंग इज ओवर। नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मीटिंग विल बी ओवर। खत्म होने वाली मीटिंग। क्या क्यों नहीं रहा है? Okay, yes, Raj, I'm back. ये वाला जो एंगल है ABC और ये वाला जो बड़ा एंगल है ABE, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नो। नो, why not? Because it's far. नो, कंडीशंस बोलो। ABE जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? इनका वर्टेक्स बोलो। ABC का वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स B। और ABE का वर्टेक्स कौन सा है? B। Okay, I'm not doing anything. It's happening on its own. I don't know why. I raise it on. Okay. Point B, है ना? Yeah. Yes. Okay. Side बोलो। डायग्राम वर्टेक्स कॉमन है। फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई। सेकंड कंडीशन, एक साइड कॉमन होनी चाहिए। कौन सी साइड कॉमन है दोनों की? ABC की साइड बताओ राज। टीचर यहाँ पे दिख रहा नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है? नहीं। ओह, मुझे बताया नहीं। ओके, लास्ट। अभी दिख रहा है सबको? Yes. ओके, सॉरी। ओके, साइड बताओ। ABC की साइड राज। AB and BC. AB and BC. नेक्स्ट बताओ, ABE की बताओ। AB BE AB and BE। DE क्यों? D तो यहाँ पे है। BE ना? I tell B. ओके ओके, सॉरी। अच्छा, तो अब दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? दोनों में कॉमन? इधर दिख रहा नहीं है। Yes. B, AB and AB. AB ओके। हर्ष आपको अभी भी नहीं दिख रहा है? राज आपको दिख रहा है? Yes. हर्ष एक काम करो, मीटिंग एग्जिट करके दोबारा से एंटर करो। ठीक है। तो दोनों का साइड इधर कॉमन है। थर्ड कंडीशन क्या है? नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। उन दोनों में कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होने चाहिए। अब ये देखो, मेरा एंगल ABC कौन सा है? ये वाला है। और एंगल ABE कौन सा है? ये वाला है। अगर मैं कोई भी पॉइंट इधर बनाऊंगी, इस एरिया में बनाऊंगी, अगर मैं इस एरिया में कोई भी पॉइंट बनाऊंगी जो मैंने ऑरेंज कर दिया है, तो वहां पे सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे? Yes. अगर कॉमन हो जाएंगे तो क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है? तो कॉमन हो जाएंगे। Yes. और कंडीशन है कि कोई भी कॉमन नहीं होने चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये वाली कंडीशन मीट हुई? नहीं हुई। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई ना। थर्ड कंडीशन गलत हो गई क्योंकि इनकी कॉमन पॉइंट्स है।
बट एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन पॉइंट नहीं होने चाहिए, है ना? So that is why this angle ABC and angle ABE are also not adjacent. Clear? क्योंकि ये ओवरलैप कर गए, ये सेम है थोड़ा सा एरिया. हमेशा याद रखना, अगर दो एंगल है उनके एरिया सेम आ रहा है, कोई भी सेम है एरिया, अमृता यू नॉट पेइंग अटेंशन. सो अगर एग्जाम में मार्क्स कम है, डोंट टेल मी, ओके? यू नीड टू पे अटेंशन. अगर कोई भी एरिया कॉमन है, अगर मैं सेम दोनों के इंटीरियर पॉइंट सेम कर सकती हूँ, देन हमेशा याद रखना वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे. एडजेसेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है वो अलग अलग रहें. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अपना घर सोचो, आपका घर और आपका नेबर का बगल वाला घर है, ठीक है? वो दोनों में कोई भी एरिया सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग घर है ना, अलग अलग एरिया है, तो वो दोनों एडजेसेंट है. बट आपका घर है और सपोज आपके घर के ऊपर कोई और घर होता, तो वो दोनों तो सेम एरिया पे है, तो वो दोनों एडजेसेंट नहीं होते, ठीक है? तो एरिया सेम नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? विद दिस your homework is you have to practice set number 15 in your notebook from your book textbook में जो set 15 है, write your homework down. You have to solve this. ठीक है? Everyone, can you show me your I will stop sharing my screen now. Can you all show me your faces? Okay, yes, Amrita and Raj are showing, उनको exercise मिल भी गई है. So for your homework, you have 15 set. You can submit homework by 4 o'clock today. ठीक है? 4 बजे तक आप करके अभी you take a break. उसके बाद have lunch आराम से, फिर बैठ के 15 वाली exercise solve करना, ठीक है? अभी नहीं खेलूंगा, बाद में. Sure. Okay. So हमारी मीटिंग आधा घंटा ज्यादा गई. I'm so sorry. कल से अगर मैं मीटिंग करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि वो 45 मिनट से ज्यादा की नहीं हो, ठीक है? आई विल डू इट ओनली फॉर 45 मिनट्स. आई विल मेक श्योर. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट मैथ्स, तो मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम लग गया. सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आप सबको समझ आया एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. या ओके, रिया इज गिविंग मी अ थम्स अप. ठीक है, अगर अभी भी राज इज ऑल्सो गिविंग, अमृता इज ऑल्सो गिविंग. शौर्य, आपको समझा? हाँ. शाश्वत समझा? ओके, फाइन. हर्ष एंड अभिषेक, डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? Okay. If you guys have any more questions, you can tell me. Do your homework and we will meet now tomorrow. ठीक है? From tomorrow only 45 minutes class. इतना लंबा क्लास नहीं होगा, ठीक है? Okay, bye bye. Thank you for staying with me for so long. Bye bye.